class you are supposed to give the test. So what I am doing, instead of going on IMCRP, because few of you are facing a problem in IMCRP, some of you are not registered, or there may be an n number of issues. So what I will be doing, that I will be sharing one link with you in the chat box, fine? Once the class get over, you have ample time, whenever you feel that fine, now I can take the test, but you have to do it on the same day. That is, if I'm giving you link today, it means you have to submit that test by today itself. Then you just click, just click on that link, open that link, and just attempt those questions which were given on that specific link, and please submit it. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ बेटा कि आप लोगों को IMCRP पे, क्योंकि कुछ को टेस्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, टेस्ट आई मीन कि मे बी कुछ लोग रजिस्टर्ड नहीं है, या कुछ भी जो टेक्निकल इश्यूज है, हम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बट फॉर द टाइम बिंग हम क्या कर सकते हैं कि मैं आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में, जैसे ही क्लास ओवर होने वाला होगा, उससे थोड़ा टाइम पहले आप लोगों के लिए एक लिंक शेयर कर दूंगी, राइट? उस लिंक पे आप ओपन करके वहां पे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको अटेम्प्ट करके, जब भी आपके पास टाइम हो विद इन दैट सेम डे, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि आज दिन में जो मैं टेस्ट दे रही हूँ वो आज ही सबमिट होगा, ये नहीं हो सकता कि कल हो जाए, नहीं, आज ही आपको सबमिट करना होगा। तो आज आपको जब टाइम मिलता है, व्हेन यू फील कि हाँ अब थोड़ा हम फ्री हैं, अब क्लासेस नहीं है बैक टू बैक, तो हम ये टेस्ट ले सकते हैं, देन एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम आप प्लीज वो टेस्ट ले लीजिएगा, ताकि आप लोगों के जो प्रेजेंट है वो मार्क हो सके क्लास में। इज दैट क्लियर? Thank you. Yes, Soma ma'am. has already texted. Yes, Thank you. Jagriti, thank you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Thank you so much, beta. Now, there's some problem in my webcam. I mean, I hope I'm visible to all of you. Yes, ma'am. Am I? Yes, ma'am. Okay, okay, Yes, okay. ma'am. So good morning to the entire class. Today, what we are going to do, we are just moving ahead what we have discussed so far. So I'm going to present my screen, and you please let me know whether it is visible to you or not. Yes, ma'am. It's visible now. Just Yes, one ma'am. minute. I think it's again gone. Yes, Is it ma'am. visible? It's still okay. Okay. No, let ma'am. me see. Okay. I'm doing it again. It's visible now. It's visible. Thank you. Thank you so much. So as we all know that what we were discussing yesterday was that what is the significance of organization behavior? What is the importance of this organization behavior, and why we are studying this organization behavior? See, there can be n number of reasons why we are studying this organization behavior, but here we are discussing only few. And these few are create sustainable competitive advantage, individual component, and the organization component. In that, what we have discussed this create sustainable competitive advantage. देखिए बेटा, हम क्या कर रहे थे, हम importance of organization behavior पढ़ रहे हैं, या हम ये देख रहे हैं कि इस organization behavior को पढ़ना इतना जरूरी क्यों है, क्या why does it matter, ये इतना मैटर क्यों करता है organizations के लिए, कि आपको organization behavior की knowledge होनी चाहिए। तो हमने देखा there are 3 points: create sustainable competitive advantage, individual component, and the organizational component. अब हम इसमें आपका create sustainable competitive advantage समझ चुके थे, और हम समझ चुके थे कि जो organization behavior है, with the help of this organization behavior, if you are going to invest in your people, you will convert them into an valuable resources. आप उन्हें एक valuable resources में convert कर सकते हैं। आप उनकी skills पे और काम करके
आप उन्हें उनके आपके लिए एक इनइमिटेबल जो दूसरे कॉपी ना कर सके एक ऐसे रिसोर्सेस बना सकते हैं आप अपने एम्प्लॉयज को, सो दैट यू आर एट द कॉम्पिटिटिव एज, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एज पे हो। अब इसमें कल आई थिंक रोशन वाज आस्किंग मी वन क्वेश्चन कि ही वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। ही वाज सेइंग कि मैम इंस्टेड ऑफ गिविंग फैसिलिटीज टू द टेम्परेरी एम्प्लॉय, why it is not that we should focus only on the permanent employee? ऐसा क्यों नहीं है कि हम सिर्फ permanent employees को दें, temporary employees को ना दें? I agree, it's a very, I mean, valid point कि भाई temporary employees they will come whenever they need, they can switch when they think they're fine, because they are not going to serve your organization for the full time. वो आपकी organization में हमेशा के लिए नहीं आए, इसीलिए वो temporary employees हैं। But again let me ask you one thing. See, अगर बहुत those who comes under the Forbes 500 list, or what we can say Fortune 500 list, sorry, those renowned companies, आपने जो बहुत जिनका अच्छा नाम है, जैसे मे बी गूगल और इंटेल, व्हाटएवर इट इज, आप एक बात सोचिए, अगर मैं वहां पे एज अ एम्प्लॉय काम कर रही हूँ, और रोशन और सोमी को तो शायद इस चीज का एक्सपीरियंस भी होगा, and if I'm working on that organization and suddenly I thought कि I should go for the higher education, मुझे higher education के लिए जाना है, and what organization is doing, they are saying कि fine, we are going to sponsor for your education, हम आपकी education को sponsor करेंगे। So when they are sponsoring my education, it simply means that they are paying my tuition fee, whatever the expenses, they are going to bear those expenses. Since I will be indulge in that higher education, so for that specific period, let's suppose 1 year, 2 year, or 6 months, whatever is the time period, at that point of a time, there will be no person. So does it mean because of my absence, the operations in the organization, they should come to the hall? No, because organization doesn't stop for anybody. No. And sometimes it's very difficult. You cannot ask any of your colleague that fine, do one thing, because Soma is doing the higher education at this point of a time, because she will be busy for the next 2 years, or Roshan will be busy for the next 2 years. So what we can do, we can ask Tisha or Shushmita that please you do the work of those two persons at least for a 2 year. This is so heart-wrenching. I mean, nobody will be ready to do that. It means what you are doing, you are overburdening Tisha and Shushmita. यानी कि अगर आपके कुछ एम्प्लॉइज हायर एजुकेशन के लिए चले गए, या लेट्स सपोज बहुत एग्जांपल है, जैसे आजकल मैटरनिटी लीव पे है, इफ देयर इज अ फीमेल एम्प्लॉय, अगर वो मैटरनिटी लीव पे चली गई, लेट्स से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है for the 3 months or the 4 months, she is on her maternity leave, she is enjoying that maternity period, तो आप ये नहीं कह सकते ना बेटा उस 3-4 महीने के लिए, देखिए दिस इज नॉट द केस, 1-2 दिन की बात नहीं है, या एक या 1 वीक या 2 वीक की बात नहीं है, दिस इज लाइक फॉर द मंथ्स और फॉर अ ईयर। अगर एजुकेशन है तो फॉर अ ईयर भी हो सकता है, अगर आपका आई मीन मैटरनिटी या कुछ ऐसा सिक लीव है तब आपका कुछ मंथ्स हो सकता है, तो उस टाइम के लिए हम ये नहीं कह सकते आपके कलीग से कि प्लीज यू जस्ट do that work which Tisha, I mean which Roshan was doing, क्योंकि Roshan higher education के लिए गए तो प्लीज आप कर लीजिए, that is not at all possible। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अदर टिशा को ओवरबर्डन कर रही हूँ। अब मैं क्योंकि टिशा को ओवरबर्डन कर रही हूँ तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो टिशा है शी विल फील डीमोटिवेटेड, और उनकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, बिकॉज एवरी टाइम दैट थिंग विल बी क्रॉलिंग ऑन माइंड, हमेशा उनके दिमाग में चलती रहेगी कि व्हाई मी ओनली, सिर्फ मुझे ही क्यों ओवरबर्डन किया गया है। और आप सोचिए कि टिशा जिस काम को कर रही थी क्या वो उसमें 100% दे पाएंगी? नहीं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम व्हाट ऑर्गेनाइजेशन कैन डू, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट टाइम पीरियड, सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि दोज एम्प्लॉइज, दोज हु आर गोइंग, दोज हु आर ऑन द leaves because of higher education, that is the sabbatical leave, जब आप हायर एजुकेशन के लिए अपने एम्प्लॉय को लीव देते हैं
दैट लीव इज टर्म्ड एज सबैटिकल लीव, उन्हें सबैटिकल लीव कहा जाता है। तो या तो आपका एम्प्लॉय हायर एजुकेशन के लिए गया हुआ है, या फिर क्या कहते हैं, अगर वो एम्प्लॉय मैटरनिटी या किसी सिक लीव पर है तो हम उनको रिप्लेस तो नहीं कर सकते। हम ये तो इट मींस अगर आप ये कहते हैं कि भाई आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो यू आर एट योर ओन रिस्क, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट गिव मी द रेजिग्नेशन एंड देन यू कैन गो फॉर हायर एजुकेशन, तब आप हायर एजुकेशन के लिए चले जाइए। इसका मतलब तो सीधे ये हुआ कि आप एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए काम ही नहीं करना चाहते। लेकिन जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो ये चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज रीस्किलिंग करें, अपनी रीस्किलिंग करें, अपने आप को अपग्रेड करें, अपग्रेड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो ऑब्वियसली दे विल नेवर से और दे विल बी नेवर बी रिलक्टेंट कि आपको अगर हायर एजुकेशन पे भेजना है तो वो रिलक्टेंट नहीं होंगे। तो उस टाइम पीरियड के लिए अगर मेरे पास क्या ऑप्शन है, ओनली ऑप्शन विच आई हैव इज दैट कि ऐसे एम्प्लॉय को सर्च करना जो कुछ टाइम के लिए काम करना चाहता है, हु इज इंटरेस्टेड इन टू सर्व माय ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड। यानी मेरी नीड थी कि मुझे एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो थोड़े टाइम के लिए करे, और मैं ऐसे एम्प्लॉय को ढूंढ रही हूँ जिसके हो सकते हैं कुछ कमिटमेंट्स हो, ऑलरेडी प्रायर कमिटमेंट्स हो, और जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को फुल टाइम सर्व नहीं कर सकता है। तो हमने क्या किया, हमने उन एम्प्लॉयज को, उन टेम्परेरी एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में फॉर द स्पेसिफिक टाइम हायर कर लिया, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में किसी के आने या जाने से कोई भी काम तब तक हॉल्ट पर ना आए। क्योंकि बेटा आप कोई आए कोई जाए, ऑर्गेनाइजेशंस किसी के आने या जाने से नहीं रुकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन रुक जाएगी बिकॉज भाई एम्प्लॉयज आर ऑन द सिक, I mean they are on the sick leave, or they are on the maternity leave, or they are on the sabbatical leave. Organizations will run. To ensure the smooth running of the operations of an organization, it is very essential, sometimes it become very essential कि we have to appoint the temporary employees for the time being. तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम temporary employees को hire करें। Let me give you another example. Let's suppose there are government universities, fine, they have certain criteria to appoint the faculties, fine. Now they just go for the interview. Sometimes they couldn't find any suitable candidate, fine, because they need the professor for that job, because that vacancy is for professor, and for the professor you should have at least 25 to 30 years of experience. It means it is written over there that you should have more than 10 years of experience. So if I'm saying that the person should have more than 10 to 15 years of experience, and when I'm planning to conduct the interview, or when I'm conducting the interview, at that point of a time I was not able to find out any suitable candidate. मुझे नहीं मिला, एक भी suitable candidate नहीं मिला। मेरी मतलब लेट्स सपोज मेरी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और मुझे वहां पे एज अ वीसी अपॉइंट किया हुआ है। मैंने इंटरव्यू लिया क्योंकि प्रोफेसर की वैकेंसी थी, और मैंने देखा कि ठीक है, प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके बहुत अच्छे रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, व्हाटएवर इज द क्राइटेरिया। मेरी इंटरव्यू लेने के बाद मुझे पता चलता है कि नन ऑफ देम इज सूटेबल, कोई भी सूटेबल नहीं है। कि हो सकता है किसी क्राइटेरिया पे हर कैंडिडेट फिट नहीं बैठ रहा है, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द कैंडिडेट। उन क्राइटेरिया पे लेट्स सपोज 3-4 क्राइटेरिया पे कैंडिडेट नंबर 4 और 6 फिट नहीं बैठता। इस तरह मुझे एक भी कैंडिडेट सूटेबल नहीं लगा और मैंने सोचा नो, आई एम नॉट गोइंग टू सेलेक्ट एनी ऑफ देम। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि क्लासेस ना लगे, क्लासेस तो लगेंगे बिकॉज सेमेस्टर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। So for the time being, what option I have left is that I can appoint the temporary faculty so that the classes should not be on hold. क्लासेस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने टेम्परेरी एम्प्लॉय को अपॉइंट करके उस सेमेस्टर के लिए उन स्टूडेंट्स का बेनिफिट देखते हुए हमने वो जो सेमेस्टर था वो विदाउट एनी हैजल या स्मूथ फ्री हैजल फ्री स्मूथली हमने वो सेमेस्टर रन कर लिया। That is the reason that why organizations sometimes have to hire the temporary employee. And I totally agree with Roshan that it should be there कि आपको
तब देखिए गवर्नमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया और फॉरगेट अबाउट इंडिया, क्रॉस द ग्लोब, it's very good that if you recruit the permanent employee, अगर आप permanent employee recruit करते हैं, it's very good thing. It's I mean you can say it's a benefit for your organization, because they will be associated with your organization somewhere. They will feel that bond is there between me and my organization. देखिए टेम्परेरी एम्प्लॉइज आएंगे जाएंगे, मे बी हो सकता है कि वो बॉन्ड डेवलप ही ना हो पाए, कभी वो अटैचमेंट आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप ही ना हो पाए. तो that's why we used to say that it's better to appoint the permanent employee. But if I'm not getting any suitable candidate, then at that point of a time the organization have to recruit the temporary employee. I hope you all are getting me. Is there any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay, No, okay, ma'am. thank you madam. Now No, ma'am. thank you so much. Now what are now we have discussed that how the company are going to create a suitable, or sorry, sustainable competitive advantage. The second importance is regarding the individual component, and how this organization behavior helps us in case of individual component, how it helps us in case of individual component. See, regarding, or when we are taking the example, or when we are discussing, sorry, this individual component, it helps us in identifying the reasons for poor or non-performance. This is the most important thing. See, when anybody joins an organization, it's me or it's you, anybody, when they are joining the organization, it becomes very essential for manager to understand that human being. जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो मैनेजर के लिए ये बहुत जरूरी बन जाता है कि पहले आप उस ह्यूमन बीइंग को समझे. एज अ मैनेजर इट्स योर ड्यूटी कि वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से उस स्पेसिफिक एम्प्लॉय की या तो परफॉर्मेंस आ नहीं पा रही है या पुअर परफॉर्मेंस आ रही है. और ये जरूरी नहीं है एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम कि जब आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, दैट इज टिल दैट पीरियड व्हेन यू क्विट दैट ऑर्गेनाइजेशन. देखिए जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन क्विट नहीं करते हैं तब तक हर मैनेजर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है. And that's why, I don't know how many of you have heard this term exit interview. देखिए बहुत अच्छी कंपनीज अगर आप देखेंगे, those who are listed again, Fortune 500, have you heard this term exit interview? Okay, very good, very good. What they used, so Soma will tell us something about this. Soma, क्या होता है बेटा exit interview में? जी, जो मुझे जितना तक पता है, जो मैंने एम्प्लॉय जो मैंने रिजेक्ट किया जाता है, फिर से उन्हें बुलाया जाता है बिकॉज ऑफ कंपनी का जो नीड्स होता है, जो एम्प्लॉय को मतलब एम्प्लॉय का जो कंपनी का जो नीड्स होता है कि एक मैंने डिपार्टमेंट में जितना लोग चाहिए उसको नहीं मिला, तो उसके बाद वो एम्प्लॉय हायर किया जाता है, जितना तक मुझे पता है. अभी एमबीए में कैसा पढ़ाया जाएगा वो मुझे नहीं पता, पर मैंने बहुत सारे कंपनी में इंटरव्यू दिया है तो उस सोर्स से मुझे पता है, मतलब ये चीज मेरा एक्सपीरियंस हुआ है. ओके, नॉट एन इशू. देखिए एग्जिट इंटरव्यू, आई एम आस्किंग अबाउट द एग्जिट इंटरव्यू. एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है? देखिए at that point of a time when employee have decided that fine, this is the time, I'm not going to serve this organization anymore. जब एम्प्लॉय ने सोच लिया कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को और सर्व नहीं करने वाला हूं और आपने अपने पेपर्स डाल दिए, मतलब आप व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू क्विट दैट ऑर्गेनाइजेशन, अब इट्स वेरी ऑब्वियस कि ऐसा नहीं हो सकता. आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं देन यू हैव टू सर्व द नोटिस पीरियड. नोटिस पीरियड आपको सर्व करना पड़ता है. नोटिस पीरियड सर्व करने का मतलब है कि आपको बताना पड़ता है दैट आई एम प्लानिंग to quit this organization and I will be leaving this organization by so and so date or by so and so month. Why because organizations always ask you to tell them about the notice period, and they always say कि जब भी आप
क्विट करने की सोचेंगे तो नोटिस पीरियड आपको सर्व करना पड़ेगा, और ये नोटिस पीरियड दोनों तरफ से होता है। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में, दोज हु आर वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर की साइड से भी और एम्प्लॉय की साइड से भी, यानी 1 मंथ प्रायर नोटिस, जनरली मैं बता रही हूँ 1 मंथ प्रायर नोटिस एम्प्लॉयर आपको देगा अगर उनको लगता है कि वो आपको डिस्चार्ज या टर्मिनेट करने वाले हैं इस जॉब से। और इसी तरह एक्सपेक्ट किया जाता है, ये क्लॉज होता है कि आप भी जब भी सोचेंगे कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन को स्विच करना है या क्विट करना है, तो आप एम्प्लॉय को पहले बता के चलेंगे प्रायर 1 मंथ। क्यों बता के चल रहे हैं? व्हाई इट इज दैट कि द ऑर्गेनाइजेशन शुड गेट इनफ टाइम टू सर्च एन ऑल्टरनेटिव फॉर दैट जॉब। इट मींस आपको ऑल्टरनेटिव हमें देखना है उस जॉब के लिए, क्योंकि अब आप तो चले जाएंगे, आपकी जगह किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे पास वो टाइम हो। अब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रही हूँ और आज मैंने टीशा को बोल दिया या मिताक्षी को मैंने बोल दिया कि मिताक्षी ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन और कल से मैं नहीं आने वाली हूँ, इट मीन्स कि अब क्या हुआ, जो ऑर्गेनाइजेशन में है और मिताक्षी के ऊपर इतना प्रेशर हो जाएगा कि इतनी जल्दी, मतलब विद इन 24 आवर्स आप दूसरा कैंडिडेट नहीं ढूंढ सकते। यू हैव टू गो फॉर द एंटायर प्रोसेस, आपको पूरा एंटायर प्रोसेस करना पड़ेगा। यानी आप एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, जॉब वैकेंसी निकालेंगे, आफ्टर दैट आप रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस होगा। अगर वो जॉब ऐसी है जिसमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, जहां कोई ट्रेन्ड कैंडिडेट ही आ सकता है, तो आप उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे, यानी इतना ज्यादा टाइम जाएगा। तो फॉर दैट वी शुड नॉट हैव दैट hurdles. That's why it is expected from the employee as well as the employer side कि आप 1 month prior notice देंगे। अब it differ, like कुछ जगह 3 months हो सकता है, 2 months हो सकता है, it differ from organization to organization। अब हम बात करें थे एग्जिट इंटरव्यू की, कि ऑर्गेनाइजेशंस ये एग्जिट इंटरव्यू करती क्यों है। देखिए, व्हाट इज द रीजन फॉर कंडक्टिंग दिस एग्जिट इंटरव्यू। ऑर्गेनाइजेशन नोज इट वेरी वेल कि भाई एम्प्लॉय हमको छोड़ के जा रहे हैं, राइट। Now we should understand that what is the reason why they are leaving our organization। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लीव क्यों कर रहे हैं? What is the reason behind that? That's why the organizations try to dig out all those things from you। वो पता करने की कोशिश करते हैं कि what is that reason। क्या हमारी कोई पॉलिसी ऐसी है जिसकी वजह से एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, या हमारा ऐसा तो नहीं है कि मैनेजर की वजह से एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, या फिर सैलरी इज द रीजन। और कर क्यों रहे? क्योंकि आपके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। सिर्फ इससे काम नहीं चलता बेटा कि आपका मार्केट में ब्रांड वैल्यू क्या है, कितने लोग जॉब के लिए आपकी कंपनी में दे आर डाइंग टू गेट जॉब इन योर कंपनी। बट द अदर थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि आप अपने एम्प्लॉइज को रिटेन कितना कर पाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कस्टमर्स के केस में जितना कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी कस्टमर्स को रिटेन करना है। रिटेन करने का मतलब है कि अगर मेरी कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कन्विंस करना, सॉरी कन्विंस करना, हाँ कन्विंस, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यानी कि आप जब भी हम क्या करें, जब मैं कहती हूँ कि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं रिटेन भी करके चलिए, यानी कस्टमर्स मेरा प्रोडक्ट मेरा मोबाइल खरीदे। इसके अलावा जब भी कभी उन्हें ये लगे कि भाई मुझे अब सेकंड मोबाइल खरीदना है, तो वो किसी और कंपनी के बारे में ना सोचे, वो डायरेक्टली दे कम टू माय कंपनी कि नहीं उसी कंपनी के पास जाएंगे, उस कंपनी का ब्रांड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं, दे आर द बेस्ट कंपनी। हमें तो अगर सर्विस लेना है तो उसी का लेना है। in the same way you know there's another thing कि हमें ये सोचना होगा कि हम क्या करें। इसी तरह हम एम्प्लॉइज को सिर्फ अट्रैक्ट नहीं कर रहे, हमें एम्प्लॉइज को रिटेन भी करके एम्प्लॉइज को रिटेन भी करके चलना है। और रीजन क्या है उसका? रीजन ये है बेटा कि अगर आप उनको रिटेन नहीं करेंगे और एम्प्लॉइज का अगर टर्नओवर ज्यादा हो गया, अगर बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले गए, तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी जो ब्रांड वैल्यू है, जो ब्रांड इमेज है, वो क्वेश्चन मार्क है उस पे। क्योंकि मार्केट में क्या लोग सोच रहे हैं कि जरूर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए एम्प्लॉइज यहाँ पे स्टिक नहीं करते।
इसीलिए एम्प्लॉयज यहाँ पे स्टिक नहीं करते और वो उसको क्विट कर देते हैं जॉब को, इसीलिए वो जॉब को क्विट कर देते हैं। तो ये जो टर्नओवर है वो भी हमें ये देख के चलना है कि हमारे, देखिए एक मतलब I should not take name of that company because it's not good, but there is one company in Bangalore. मैं आपको मतलब क्योंकि अलग से बता दूंगी if you will ask me, but हाँ I should refrain myself from taking the name of that company, but there is one company in Bangalore. Fine. What they have done in that pandemic situation, that they have asked their employees that you are now, every employee, they are entitled to get some casual leave, some sick leave. So when this pandemic situation is started, that company from Bangalore, they have decided that no, now you're not entitled to get those leaves which we were giving you, because that's why you're right. You were supposed to get all those leaves, but now you can't take any leave and you have to be here. I mean, you will be working 7 days without any holiday. So the case would be like that. If number of employees, if they are leaving that organization, then there will be a question mark on that organization. यानी उस organization पे question mark हो जाता है कि क्या क्या चीज खराब है, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज अच्छी नहीं है, क्या है यहाँ पे अच्छा नहीं है, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आर दे ट्रीटिंग देयर एम्प्लॉइज एज स्लेव्स, क्या स्लेव्स की तरह ट्रीट करके चल रहे हैं, क्या वो मतलब अपने एम्प्लॉइज को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट नहीं करे। प्रॉब्लम क्या है भाई, इतने सारे एम्प्लॉइज अगर छोड़ के जा रहे हैं जॉब, इट मींस कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो जो सेकंड जो आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन है, वो एम्प्लॉय अगर मुझे जॉब चाहिए तो मैं उस स्पेसिफिक कंपनी को जो बैंगलोर है उसे अनटिल अनलेस मेरे पास सारे ऑप्शंस क्लोज हो जाए, जब मेरे पास कोई ऑप्शन ना बचे, तब मैं उसे अपनी लिस्ट में रखूंगी। वरना मैं क्या सोचूंगी, नहीं, दैट इज नॉट एट ऑल गुड ऑर्गेनाइजेशन। भाई कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लेबर टर्नओवर वहां पे ज्यादा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो योर दैट ब्रांड वैल्यू इज लाइक दैट इज ऑन स्टेक, वो दाव पे लग जाती है, दैट कम्स ऑन स्टेक, वो स्टेक पे आ जाती है। और ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी ये नहीं चाहती। अगेन देयर आर सो मेनी थिंग्स कि आपको मतलब अगर आप बाकी चीजें भी देखें, लीगल इश्यूज भी देखें, तो लेबर राइट्स, लेबर लॉज, वो सारी चीजें तो सेकेंडरी है, वो इश्यूज तो आपको फेस करने ही होंगे, लेकिन ये सारी चीजें भी आपको फेस करनी पड़ती है कि आपके ब्रांड वैल्यू स्टेक पे आ जाती है। अब एज अ मैनेजर इट्स योर ड्यूटी कि आप जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ज्वाइन, क्योंकि जैसे उसने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया वो कैंडिडेट से एम्प्लॉय बन गया, तो जैसे उसने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया आप उसको समझे, बिकॉज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट पर्सन, आप जब भी कोई टास्क दे रहे हैं उसको या स्पेसिफिक असाइनमेंट उसको भेज रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन आप उसको भेजेंगे। दूसरी चीज, लेट सपोज कि इफ दैट एम्प्लॉय, अगर मान लीजिए मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 to 10 ईयर्स से काम कर रही हूँ, और अब मान लीजिए कि जब से मैंने ज्वाइन किया था तब से मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मतलब कई बार मुझे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर और ऑफ द मंथ का टैग भी मिल चुका था, दे वर अप्रिशिएटिंग मी, लेकिन सडनली फ्रॉम द लास्ट मंथ 6 months आई वाज नॉट एट ऑल परफॉर्मिंग, मैं परफॉर्म नहीं कर रही हूँ या मेरी बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, then it's very essential to know the reason behind that। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑर्गेनाइजेशन ये सोचे कि forget about that thing, कि भाई मनीषा सिंह अभी तक तो पिछले 6 साल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में थी, there was not a single complaint, she was the star performer, बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, स्टार परफॉर्मर थी, अब ये अगर परफॉर्म नहीं कर रही है, वी आर गोइंग टू टर्मिनेट हर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, because you know that they are the best employees, they are your talent, they are your assets, वो आपके assets है। So what we can do, the organizations or the management, they have to find out the reason, उन्हें रीजन पता करना होगा कि मेरी पुअर या नॉन परफॉर्मेंस, जो मैं कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, उसका रीजन क्या है और उसे चेंज कैसे किया जा सकता है। यानी मेरे एटीट्यूड को या जो भी मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, अगर उससे इफ द टॉप मैनेजमेंट कैन सपोर्ट मी, या मेरा अगर एटीट्यूड कुछ नेगेटिव हो गया है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन और टुवर्ड्स माय मैनेजर, तो उसे कैसे चेंज किया जा सकता है। एंड दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग दिस इंडिविजुअल कंपोनेंट। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। इफ अगर किसी को भी कोई डाउट है, प्लीज प्लीज लेट मी नो। इफ देयर इज एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू आर मोस्ट वेलकम। इज देयर एनी क्वेरी? मिताक्षी, दीपक, योगेश? मैम सब कंपनी में तो सेम क्लॉज नहीं होता है, जैसे कि आप जो बोल रहे हैं हाँ जी। मतलब ये तो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है ना। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि पैंडेमिक इस कोविड सिचुएशन में बहुत सारे कंपनी, मैं भी कंपनी में काम करती हूँ, सो आई नो वेरी वेल कि बहुत सारे कंपनीज आईटी कंपनी है जो वर्क फ्रॉम होम दिया है। ओके हाँ, जैसे कि और ऐसा भी कंपनी है जो वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया। इवन जो एम्प्लॉय है वो पूरा मतलब अभी उनके पास काम नहीं है, तो हाँ, वो बिल्कुल। क्लॉज क्या मतलब डिपेंड करता है, मतलब वो क्या मतलब ऐसा कोई गवर्नमेंट रूल है ना, वो जस्ट वो उस कंपनी के ऊपर ही है, मैं जो चाहूँ करूँगा, ऐसा कुछ है मतलब। वो चीज थोड़ा बोलिए मुझे, तो वो चीज हाँ मुझे पता नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सोमा, अगेन यू एब्सोल्युटली करेक्ट कि इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, fine, but see, there are some labor laws, there are some legal, I mean, what we can say, policies, कि you cannot terminate anybody without giving a valid reason, right? So if anybody is terminating me without stating a valid reason, just they are saying कि, okay fine, because if let's suppose because I have just raised the objection that fine, I mean I mean this is not fair that you are just uh, snatching my rights to avail this casually, and if they're saying okay fine, because you have raised the voice, we are going to terminate you, it means somewhere you have the autocratic approach, you don't want to listen anything. In that case, if I'll move for the legal options, then I have those legal options available with me, because you anybody whosoever it is, if you are going to terminate any permanent employee, you have to give the valid reason for their termination. आपको अपने टर्मिनेशन लेटर में उस एम्प्लॉय के लिए वैलिड रीजन देना पड़ेगा। तो आई अग्री कि इट डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको कितना सीएल मिल रहा है, कितना ईएल मिल रहा है, वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी मिल रहा है या वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। आई अग्री, बट अगेन in some cases we have those legal options available with us, but it depends. See, sometimes the employees are very reluctant, what they used to think it's not a good idea to indulge in all these legal complications, क्योंकि हम अगर इन legal complications में अगर indulge होने वाले हैं, then we are going to suffer, क्योंकि मुझे हमेशा इन कोर्ट के या किसी चीज के, मैं every time I will be moving to the court, तो don't waste our time, because I have my family, I have to support my family, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो मैं सब में इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ। हमारे इंडिया में अक्सर ये मेंटेलिटी है, बट ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में लोग जाते भी है कोर्ट, बट if it is the cross, I mean if it is the case from outside India, you would be surprised to know that there are some of the countries where you cannot call or even you cannot text to your employees after the working hours. Once my working hours get over, दे वो एम्प्लॉय को कुछ कंपनी, जैसे कतार एयर्स का जो है, बहुत ही मैंने मेरा एक फ्रेंड वहां पे काम करता है, दे आर वेरी मतलब वहां पे मतलब आप देख के ही लगेगा हाँ मैं इनके साथ काम करूं, वो एम्प्लॉय के साथ इतना मतलब फ्रेंडली, और वो अपने फैमिली समझते हैं अपने एम्प्लॉय को। बिल्कुल, और वही सोमा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वही हमें ये एचआर या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ये पढ़ने का मजा आता है, क्योंकि हमें वहां पे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिलते हैं। इंडिया के केस में क्या होता है कि मोर और लेस वी हैव दैट अप्रोच ओनली, एक्सेप्ट द फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, हमारी वही अप्रोच है, एक्सप्लॉइटेटिव अप्रोच है। जैसे उस दिन रोशन कह रहे थे कि मैम वही अप्रोच है कि हम एम्प्लॉइज को क्या समझ रहे हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारे लिए तो वो टूल्स हैं बस, एनी हाउ आई नीड द रिजल्ट, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। लेकिन जहां एम्प्लॉइज को एज एन एसेट ट्रीट किया जाता है, वहां आपको लगेगा कि एम्प्लॉइज दे आर अटैच्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन से ऑटोमेटिकली, मतलब आप सोचिए कि अब कितना भी आपको काम है, यू आर माय बॉस,
but you are not supposed to call me as soon as my working hour gets over. जैसे मेरे वर्किंग आवर्स ओवर हो गए, यू आर नॉट सपोज टू राइट मी इवन अ सिंगल मेल. आप मुझे नहीं कह सकते हैं किसी काम के लिए. तो हाउ मच यू आर गिविंग, आई मीन that I have, I mean, you are concerned about me, that I have my personal life. Like after my working hours, I have my family. तो आपका क्या होता है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है, यानी आपकी पर्सनल लाइफ भी साथ चलती है और प्रोफेशनल लाइफ भी साथ चलती है. अब अगर हम इंडिया के केस में लें और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के केस में लें, तो वर्क लाइफ बैलेंस कहीं है ही नहीं. बिकॉज वी डोंट केयर. लाइक सेल्स, ज्यादातर जॉब्स में योर बॉस, मतलब दे विल नॉट लिसन एनी एक्सक्यूजेस. उनको तो अगर रात को 12 बजे भी आपको कॉल करना है, वो आपको कर देंगे कि भाई नहीं नहीं कल वहां जाना, कल वहां उस क्लाइंट से मिलना, देखो मैंने मीटिंग अरेंज कर दिया. या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनीज को देख लें, दे डोंट केयर अबाउट इट. उनको लगता है कि क्लाइंट बैठा हुआ है किसी और कंट्री में और हमारा टाइम जोन क्योंकि डिफरेंट है, तो आप रात को भी रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं. व्हाट्स अ बिग डील इन दैट? आप रात को करते ही क्या है? तो दीज थिंग्स. कैन आई आस्क समथिंग इन इंडिया? ये क्यों है मैम? क्योंकि देखिए एज अ गवर्नमेंट की तरफ से तो रूल्स एंड रेगुलेशन सारे कंपनी को एक ही दिया गया है, राइट? तो लेबर लॉ भी तो एक ही है. आउट ऑफ इंडिया में ठीक है, वहां पे अलग चीज है, रूल्स रेगुलेशंस अलग है. पर इन इंडिया सारी कंपनी को, जैसे बड़े कंपनी में भी जो लेबर लॉ होगा और छोटे कंपनी में भी होगा. हाँ, हो सकता है इकोनॉमिक पर फाइनेंशियली उसका टर्नओवर अलग हो, पर ये क्यों, मतलब ये चीज क्यों, मतलब ये डिफरेंसेस क्यों, मतलब ये चीज मुझे समझ में नहीं आता है. क्योंकि मैंने भी बहुत सारे कंपनी में काम कर चुकी हूँ. कुछ कुछ कंपनी तो रियली वेरी सपोर्टिव, काम सीखने को के लिए बहुत इनकरेज किया जाता है. और रियली आप जो बोल रहे हैं ना, कुछ कंपनी में सिर्फ टूल समझा जाता है, मतलब यू आर ह्यूमन बीइंग, जस्ट काम करो, तुम्हारा काम मुझे 100 से लेके 90% चाहिए ही चाहिए, ऐसा है. और बिहेवियर तो बहुत खराब है. मैं पर्सनली मैंने बिलीव करती हूँ, मैं 12 घंटे काम कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना इफेक्टिव हूँ. पर कोई किसी का अगर बिहेवियर खराब हो ना, वहां पे काम करने का ना, मतलब बहुत इंसल्ट फील होता है. मैं पर्सनली ये बिहेव करती हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड. ये चीज क्यों very डिफरेंस valid रहता है? point. You have raised a very valid point. A great applaud for you. Very good. See again Soma, still I will say कि हम इस चीज पे कल डिस्कस करेंगे, बट हाँ कुछ चीज मैं आपको बता देती हूँ. what you are saying कि it's not about the salary and it's not about anything else, but it's about our manager, it's about the working conditions, है ना. दो चीजें बहुत खराब लगती हैं, या जब आपका मैनेजर बहुत अच्छा नहीं है, और जब आपका वर्किंग कंडीशंस जिस सर्कमस्टांसेस में, या जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके पीयर्स हैं, और बहुत सारे केसेस में तो कलीग्स पीयर्स को बात छोड़िए, जब आपके बॉस दे डोंट अंडरस्टैंड यू एंड दे ट्रीट यू एज अ स्लेव. हमें कुछ नहीं चाहिए, मतलब माय वे और हाईवे, या तो मेरी बात सुनो या फिर छोड़ के चले जाओ ऑर्गेनाइजेशन को. कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट में ये बात बैठ जाती है कि आई एम द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मे भी हो सकता है टॉप मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, टॉप मैनेजमेंट माइट बी दे पीपल आर हैप्पी विद योर वर्क, लेकिन कहीं ना कहीं बॉस के दिमाग में ये बैठ जाता है कि ओके फाइन, they are not the owner of this organization, I am the owner of this organization. See, there are n number of reasons. एक तो बेटा ये चीज है कि कितने ऐसे लोग हैं जो अभी ये समझ पाए हैं. That's why I used to say कि एक जब इंट्रोडक्टरी सेशन ले रहे थे, तब मैंने वहां पे बताया था कि वी हैव डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ लीडरशिप स्टाइल, है ना. बहुत सारे अप्रोचेस हैं लीडरशिप स्टाइल के, और मैक्सिमम केसेस में मतलब हम ये देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि आपका जो बॉस है वो कैसा बॉस है कि वो ऑटोक्रेटिक है, मतलब मेरी सुनो, वन वे कम्युनिकेशन है, जो मैं कहूँ वो सुनो, जो आप चाहते हो वो मुझे नहीं सुनना. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर एक्सक्यूजेस और व्हाटसोएवर. अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन भी है तो मुझे नहीं सुनना. आई नीड वर्क वर्क वर्क. एम्प्लॉइज आर रेडी टू डू देयर वर्क. एम्प्लॉइज को पता है कि अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, आई नो इट्स माई ड्यूटी. बिकॉज देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई आपको सैलरी दे रही है, देन यू आर ऑब्लाइज्ड, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया गया है वो काम आप करें. इट्स वेरी ऑब्वियस. एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट वर्क, इट मींस यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योर वर्क. आप अपने काम से ऑनेस्ट नहीं है, यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन और विद योर जॉब, व्हाटसोएवर इट इज. But the
where the problem arises from the management, sorry, from this manager. हमेशा क्या होता है कि मैनेजर जो चाहते हैं वो उस तरह का अपनी टीम के अंदर वर्किंग कंडीशंस को क्रिएट कर देते हैं। और क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेट सपोज अगर हमारे पास 10 ऐसे मैनेजर है तो सूनर और लेटर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर वैसा बन जाता है। नाउ फ्रॉम वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट, दो तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। या तो टॉप मैनेजमेंट, उनकी फिलॉसफी ऐसी है जहां वो ये सोचते हैं कि नहीं भाई हमें एम्प्लॉइज से कुछ, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट एम्प्लॉइज, हमें क्या है, हमें तो बस अपने काम से मतलब है, वी डोंट बॉदर अबाउट एम्प्लॉइज। या फिर ये हो सकता है कि टॉप मैनेजमेंट दे कंसर्न अबाउट देयर एम्प्लॉइज, उन्हें कंसर्न है, बट दे हैव अपॉइंटेड द रॉन्ग मैनेजर्स, उन्होंने गलत मैनेजर्स को अलग अलग जगह पे अपॉइंट कर दिया है। नाउ दे आर द पर्सन हु आर गोइंग टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द एम्प्लॉइज, वो एम्प्लॉय से इंटरेक्ट कर रहे हैं। यू आर नॉट इंटरेक्टिंग वन टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो अब उनकी मर्जी, वो हो सकता है बहुत सेलेक्टिव हियरिंग हो उनकी, या सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन पासिंग हो कि जो मुझे लगता है वही इंफॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ जो मेरे बेनिफिट की है, जो आपके बेनिफिट की है वो इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर नहीं करी हूँ। या मेरी बड़ी सेलेक्टिव हियरिंग है कि ठीक है अगर जागृति मेरे पास आती है तो मैं जागृति का एक्सक्यूज मान लेती हूँ, लेकिन आप मेरे पास आई सोमा एंड आई सेड कि प्लीज डोंट गिव मी एनी लेम एक्सक्यूजेस, मैं आपका कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूं। सो every time it is very essential for the management, first you should monitor your managers। आप अपने मॉनिटर अगर मैनेजर्स को कर लेंगे, मिडिल लेवल को कर लेंगे ना, तो जो लोअर लेवल है वो तो ऑटोमेटिकली अपने आप अच्छा हो जाएगा। देखिए इस चीज में मैं कल आपको एक डेल का एग्जांपल और दूंगी, व्हाट दे हैव डन, that was a very interesting example। Tomorrow I will give you that example। For the time being, what I'm going to tell you कि please, though we will be discussing regarding this only which Soma have asked, हम कल दोबारा इसको डिस्कस करेंगे डेल से लेके। देखिए लेट मी टेल यू समथिंग कि बेटा आप लोगों को अपने चैट बॉक्स में एक लिंक नजर आ रहा होगा, आर यू एबल टू सी दैट लिंक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now what you are supposed to do कि whenever you feel that you have a time, but ये चीज ध्यान रखिए बेटा ये आज ही करना है, right? Then you will click on that link, there are some questions, you are supposed to give answer of those questions and